Very good morning to one and all present. I, Monica Kurana, welcome you all to the 14th session of AICT Atal sponsored Faculty Development Program on Industrial Internet of Things. It's my great pleasure and honor to welcome Shri Krishna Padas. He has done BTech in Computer Science and Engineering. He is a youth mentor and life cycle coach at Hare Krishna Movement, the Akshay Path Foundation. The Akshay Path Foundation is feeding 18 lakhs poor kids across the country every day. It has served 12 crore meals to poor during COVID-19 pandemic situation till now. He has delivered many inspirational talks at NITs, IITs, and IIMs based on timeless Vedic wisdom of Bhagavad Gita. He has participated in panel discussions and debates at ETV, Z News, Doordarshan, etc. He has 8 years of experience in teaching the principle of Gita in day-to-day life. Now, I would like to request Shri Krishna Das ji to kindly acknowledge the audience by sharing your knowledge and experience on the topic stress management, power and positivity. Over to you, sir. Thank you very much for introducing me, all the faculties from the SKIT Institute and other institutes. So it's my very privilege today to interact with you all on the most important subject matter from Bhagavad Gita. So today we will be discussing on stress management. As you all know, in current situations, COVID-19 pandemic situations, many bad things had happened with many peoples, and because of this, not only one section of society but all sections of the society, they have some kind of anxiety. So how to overcome all these anxieties, today we will try to understand very logically, very scientifically. If till the end you are with me, definitely you will see some x plus delta x in your consciousness, in your life. So I dedicate this session to His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is founder and Acharya of worldwide Hare Krishna movement. In 1960s, Srila Prabhupada, at the age of 70, traveled from India to US, having just 40 rupees in his hand. And just within 10 years, Srila Prabhupada very logically, scientifically presented our ancient Vedic wisdom to the Western world. And just within 10 years, Srila Prabhupada established 108 centers of this Vedic culture across the globe. So based on his teachings, taking blessings from Srila Prabhupada, we will try to understand something today. And as you all know about Akshay Patra, the aim of Akshay Patra that no child in India shall be deprived of education because of hunger. So we have this program to feed the hungry stomachs, and we have another program to feed hungry brains. आज का जो युवा है उसकी दशा और दिशा दोनों खराब हो रही है, उसको सही करने के लिए we have programs based on that ancient Vedic wisdom, and these are some things from Akshay Patra. And apart from it, you might be knowing about our another program, Hingonia Gosala, where we have 10,000 plus cows, and we have programs based on the teachings of Bhagavad Gita for all sections of the society. For kids we have programs, for faculties we have, for youngsters we have, for everyone we have programs. So today let's talk about stress management. Actually, all of us want to be happy in all phases of our life. You just remember your 10th class. Your parents would have told you, आपके parents ने आपको बोला होगा, बेटा आप बस अच्छे से 10th class कर लो, then everything will be fine. Then we worked hard for 10th class, then we came into 12th class. Again our parents told, बेटा बस 12th अच्छे से कर लो, जीवन की ये दूसरी सीढ़ी है, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अच्छा जॉब मिल जाएगा. ओके, 12th भी अच्छे से कर ली, अच्छी कॉलेज भी मिल गई, अच्छा जॉब भी मिल गया.
But let's now look into all of us. Are we completely happy? Are we completely satisfied in our life? Even though we have job, we have that much money so that we can live, but are we completely happy? Let's ask this question to all of us. खुद से ही हम ये प्रश्न पूछें, बेटा बस ये कर लो फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे कि जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है. So this is the situation because we are doing one mistake, especially in this modern civilization, in current civilization. The common denominator of people's happiness is, like we see in the Western countries, luxurious house, skyscraper buildings, jet planes, gigantic ships, mobile phones, robots, rockets, well-planned cities. And in spite of all this advancement, men are dissatisfied, full of anxiety, stress, depressed, repressed. This is the situation. Yes or no? This is the situation. So now let's watch one video to have more clarity. In the last 6 months, more than 1,000 books have been published about it. Universities around the world are teaching on it. For 30 years, scientists have been studying it. Governments are appointing cabinet positions to oversee it. The United Nations named an official day after it. Google Analytics prove people are searching for it. In fact, it's one of humanity's oldest pursuits. Happiness. We are wealthier, more educated, and live longer than any previous generation. And during the Great Depression, when there was little to be happy about, we were actually 18% less depressed than we are now. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? In the So we have understood that we think if we work hard, then we will be happy. But actually, first of all, we should know how to be happy. Then in that state, we can work hard. If we are not happy today, there are less possibilities that we will be happy tomorrow. We should try to learn to be happy in all situations, in all circumstances.
If we are happy, we can spread this happiness to thousands of people. And actually, everyone is trying to increase pleasure and decrease pain. That is our endeavor. Still, the depression comes. Why this is coming? Where is the university? Where is the college institute which is teaching people how to be happy and satisfied? कोई ऐसा संस्थान नहीं है दुनिया में जो लोगों को सिखाता है कैसे खुश रहा जाए. You see, every hour one person is committing suicide in India. This is the situation. And कोटा में जो सुसाइड की रेट है उसने तो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को पीछे छोड़ दिया है. So where are we going wrong in search of happiness? Happiness is the intrinsic quality of the soul. हम सब खुश रहना चाहते हैं. Our scripture says आनंदमयो अभ्यासात. Always we want to be happy. In fact, we seek 4 kinds of happiness. 4 तरह के आनंद की तलाश में हम सब लोग 4 प्रकार से आनंद लेते हैं. One is sensual happiness, another one is mental happiness, another one is intellectual happiness, and above all is spiritual happiness. And these thoughts, these teachings from our ancient Vedic scriptures are very, very relevant, logical, scientific. ये जो धारावाहिक चल रहा है, इस धारावाहिक, वो एक धारावाहिक आता है, उसमें बोलते हैं कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं. लेकिन ये जो आप लोगों के साथ हमारा धारावाहिक चल रहा है, आज एपिसोड चल रहा है, इसका एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है. इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है. So we seek these 4 kind of happiness in our life. And broadly speaking, there are 2 kinds of happiness. One is material happiness, another one is spiritual happiness. So we'll understand it. So material pleasure, there are very ways and means to acquire material pleasure. And most of the time, we take this material pleasure from our senses. Sight, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, right? अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा स्मेल करना चाहते हैं, good touch sensation. But एक पॉइंट आता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है, एक पॉइंट पे आने के बाद हम लोग बोर हो जाते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, if I give you 2 रसगुल्लास, 2 गुलाब जामुन, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, फिर मैं आपको 2 और ले लीजिए, तो यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 2 और ले लेंगे. मैं तो 2 और, फिर एक समय पे आप बोलेंगे नहीं अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया. This is what exactly with the material pleasure. जो मटेरियल प्लेजर है उसके साथ ऐसा ही है. हमें लगता है कि ये सब मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो मिल जाता है उसके बाद हम फिर भी खुश नहीं होते हैं, राइट? सो वी डोंट गेट सेटिस्फैक्शन. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं. एक राजा था और वो थोड़ा सा परेशान था. एक दिन वो भ्रमण कर रहा था और वो अपने दरबार में देखता है कि एक बड़ई, एक कारपेंटर, वो मस्ती में है और अपना काम कर रहा है, फुल मस्ती में काम कर रहा है, अपना कुछ गुनगुना रहा है और काम कर रहा है. राजा थोड़ा परेशान था, डिप्रेस्ड था. वो अपने मंत्री को बुलाता है, अरे मंत्री मुझे ये बताओ यार, मैं राजा हूं यहाँ का और ये जो आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी, कारपेंटर 4th क्लास, ये इतना सुखी क्यों है, इतना आनंद में क्यों है? तो मंत्री बोलता है एक्चुअली वो जो व्यक्ति है वो 99 क्लब का मेंबर नहीं है और आप 99 क्लब के मेंबर हो, तो राजा को समझ में नहीं आता है. तो मंत्री बोलता है ठीक है, आपको समझ में आएगा, मुझे आप क्या करो, 99 गोल्ड कॉइन्स का एक बंडल दे दो, एक गठरी दे दो. ठीक है, राजा ने दे दी. तो मंत्री क्या करता है, उस गठरी को लेके रात को ये जो बढ़ई था, कारपेंटर था, उसके दरवाजे पर लटका के आ जाता है. तो अगली सुबह ये कारपेंटर देखता है, अरे ये क्या है, उसको नीचे उतारता है,
उसको देखता है, अरे वाह, इसमें तो सोने की मुद्राएं हैं। उसको गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ये 99 क्यों है? कोई रख के जाएगा तो 100 रख के जाएगा। वाई somebody has kept 99। अपने बेटे को बुलाता है, वो भी गिनता है, 95 96 97 98 99। वाइफ को बुलाता है, वो भी गिनती है, फिर भी 99 है। फिर वो सोचता है अब तो मैं इसको 100 करके रहूंगा। फिर वो क्या करता है पता है? अपने सुपरवाइजर को बोलता है कि मेरी 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाओ। तो सुबह से शाम 3 शिफ्ट में काम करता है, और उसको कोई छेड़ता रहे, दूर हट जाओ, परेशान मत करो। फिर एक दिन पुनः, एक बार पुनः राजा इस बढ़ई को, कारपेंटर को देखता है और बोलता है, अरे यार ये तो कितना सुखी था, अभी इतना दुखी है। ऐसी तो स्थिति है ना। तो मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, ये जो व्यक्ति है अभी ये भी 99 क्लब का मेंबर बन गया है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा, छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति है, सच्चाई है ये। Why we are not happy and satisfied with what we have already got by the God's grace? Everything is there in this world to fulfill the needs of everyone, but not to fulfill the need of everyone. Sorry, greed of everyone. नीड को फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है। So we have to take lesson from this story. Somewhere we are missing the target. We want to be happy. जो भी हम कर रहे हैं उससे अल्टीमेट गोल है हमारा खुश रहना। क्यों नहीं हम खुश रह पा रहे हैं? यदि आप में से कोई बोले नहीं मैं तो बहुत खुश हूं, तो एक और तरीका है आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने का, उस खुशी में और डेल्टा एक्स लाने का। So somewhere we are missing the target. Hope after hope, hope after hope. So let's watch another video.
मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। हम रियल सेटिस्फैक्शन जो हैप्पीनेस है उसके पीछे वी रन एंड एक स्टेप आगे गए तो लगता है एक स्टेप और आगे जाना है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस एंड दीज टू साइंटिस्ट डायना जोहर एंड इयान मार्शल, they point out in their book on SQ what they say very beautifully. They say we live in a spiritually dumb culture characterized by materialism, self-centeredness, lack of meanings in life. And we know that statics prove violence, public unrest, anxiety, stress constantly on rise everywhere, wars, terrorism, and many divorces are happening. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बट यू सी व्हाट्स हैपनिंग, यूएस आउट ऑफ 100 मैरिज 55, कनाडा, डेनमार्क। सो एक्चुअली इट्स ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग द टेक्निकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एंड टू आवरसेल्फ, वी शुड टेक आउट सम टाइम to introspect about ourselves. How can we be happy and satisfied in all circumstances, in all situations? This is the most important question. So there is a wonderful analogy in this regard. एक रानी थी, उस रानी के पास एक सोने का पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में एक तोता था। प्रतिदिन वो रानी सुबह जगती और इस पिंजड़े की सफाई करती, क्योंकि सोने का पिंजड़ा था। और 20 दिन बाद वो देखती है कि पिंजड़े के अंदर जो तोता था वो तो मर गया। तोता मर गया। क्यों मर गया तोता? क्योंकि उसने पिंजड़े की सफाई की, तोते को खाना नहीं खिलाया। दैट्स व्हाई पैरट डाइड। एंड बाइबल पॉइंट्स आउट, actually there is no contradiction between our scriptures, Bible, Quran, Bhagavad Gita. The basic principles are same. What profit a man if he wins the whole world but loses the soul? This is a very very important understanding. मछली को आप पानी से बाहर निकालो, मर्सिडीज में बिठाओ, पनीर कोफ्ता खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, जयपुर का सबसे अच्छा स्वीट खिलाओ उसको, 5G इंटरनेट दे दो उसको, मछली खुश रहेगी? मछली खुश नहीं रह सकती है। मछली जल की रानी। एक भगवत गीता में बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है, बहुत ही लॉजिकल है, साइंटिफिक है। एक्चुअली भगवत गीता इज ए कंप्लीटली साइंटिफिक बुक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, व्हेन ही विजिटेड आवर प्लेस इन बैंगलोर, we gifted him one copy of भगवत गीता। वो भगवत गीता उन्होंने सिर से लगा ली और बोलते हैं कि इस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया है। This book has changed my life। तो आइए भगवत गीता से हम समझते हैं, यदि हम अपने शरीर की तुलना, इफ वी कंपेयर आवर बॉडी विद द चैरियट, एक रथ से करें, तो इस रथ में जो 5 घोड़े आप देख रहे हैं, दीज आर कंपेयर्ड विद आवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों से इसकी तुलना की गई है। क्योंकि हमारी इंद्रियां एक ही समय पर अलग अलग कार्य करना चाहती हैं, और यदि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, घोड़े को कंट्रोल करना है, तो लगाम होनी चाहिए, लगाम। उस लगाम की तुलना हमारे मन से की गई है, और मन से भी ऊपर है, उस सारथी से भी ऊपर है, उस लगाम से भी ऊपर है वो सारथी जिसने पकड़ रखा है। तो मन से भी ऊपर है हमारी बुद्धि। तो इंद्रियां हैं जिनकी तुलना घोड़ों से की गई है, उसके ऊपर हमारा मन है जिसकी तुलना लगाम से की गई है, उसके ऊपर सारथी है जिसकी तुलना बुद्धि से की गई है, और उससे ऊपर क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आज मैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा बताता हूं। श्रीला प्रभुपाद जब MIT में, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे,
So he asked this question to all the intellectuals that do you have any technology, by using that technology you can make a dead person alive? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप एक मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकें? क्योंकि मरने से पहले और मरने के बाद व्यक्ति वैसा ही दिखता है, शरीर का हुलिया वैसा ही है। यू विल नॉट बिलीव, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि एक्चुअली सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। शरीर वैसा ही दिख रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है क्योंकि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। Actually, we must understand our identity, that we are spiritual in nature. Our identity is spiritual. If our identity is spiritual, then what should be our food? What should be our activity? Obviously spiritual. But modern civilization is forgetting this fundamental fact of life. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। You would have seen sometime that somebody has died and dead body is lying down, शरीर पड़ा हुआ है, and people are sitting around and they are crying, चले गए चले गए चले गए चले गए। आप उनसे पूछिए कौन चले गए? अरे यहीं तो लेटे हुए हैं, जैसे पहले दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं। तो जो व्यक्ति चला गया है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आपने कभी आपका बचपन का फोटो देखा है? आप हंसेंगे, अरे हम ऐसे दिखते थे क्या, हम ऐसी दिखती थी। लेकिन अभी पूरा बदल गया, आपका मन भी बदल गया, आपका सोचने का तरीका बदल गया है, पूरे बदल चुके हैं आप। इवन मेडिकल साइंस बोलती है आफ्टर एवरी 7 ईयर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी गेट्स चेंज्ड। 7 वर्ष के बाद हमारे शरीर का एक एक कोशिका बदल जाती है। So from here very easily we can make out that we are not this body, is body just like a dress. Bhagavad Gita very beautifully points out this point कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देह, ये देह है, इसके अंदर एक देही है। जो देह है कौमारम यौवनम जरा, किशोर अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, देन वी लीव द बॉडी। बट जो देही है, जो आत्मा है, वो नहीं बदलती है, वो दूसरे शरीर में चली जाती है। दिस इज द रियलिटी एंड दिस रियलिटी इज टॉट इन श्रीमद् भगवद गीता। लॉर्ड कृष्ण भगवान का ये सबसे पहला लेसन है। जब अर्जुन बहुत परप्लेक्स थे, परेशान थे, हाथ कांप रहे थे और वो जो गांडीव था वो गिर रहा था, तब कृष्ण को बोलते हैं शिष्यस्ते हम ताम साधि माम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपको सरेंडर करता हूं, मुझे कुछ बताइए। तब पहला निर्देश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि अर्जुन सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी। इसको दूसरे शब्दों में समझे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की। फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज ए साइंस। मैं साइंस साइंस बोल रहा हूं, लेट मी टेल यू, बिकॉज all of you faculties are from science background, so let me try to explain you that how we can understand that this Bhagavad Gita is a science. यदि modern science की बात करें हम, if we talk about the modern science is working on 3 aspects. Let's take one example. If you mix 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, you will get 2 molecules of water. This particular aspect of science is called predictability. ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। Now another aspect is universality. ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं पर करिए, आपको यही परिणाम मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। And third aspect is repeatability. जितनी बार करेंगे यही रिजल्ट आएगा। Predictability, universality and repeatability, these are the 3 fundamental aspects of the modern science.
Now let's apply all these principles on Bhagavad Gita. If you read Bhagavad Gita, definitely there will be positive transformation in your life. Predictability. नहीं तो आप पढ़ के देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, देखिए आप. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो रिपीटेबिलिटी, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने आप स्पिरिचुअल पॉजिटिव होते जाएंगे. एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सैलिटी. एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब यू रीड भगवत गीता, इट विल हैव द ट्रांसेंडेंटल पॉजिटिव इफेक्ट इन योर लाइफ. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. होता क्या है, हाँ जी पढ़ी है घर पे भगवत गीता, पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है. It's very important. And this knowledge, please understand, this knowledge is meant for us. आपने कभी देखा है कि some 30-50 dogs are sitting in a room and discussing the goal of life, reading Bhagavad Gita? Never. This particular knowledge is meant for us, for human being. And the most fundamental thing that we understand from Bhagavad Gita is that we are not this body. ये दुनिया का 8वां अजूबा है जो लोगों को पता नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है. अच्छा, यदि हम आत्मा है तो आत्मा का फूड क्या होना चाहिए? If our real identity is spiritual, then our activities should be spiritual. What should be our food? The food of the soul should be the spiritual knowledge, because soul is spiritual in nature. Soul needs spiritual knowledge. We need spiritual knowledge. We need spiritual mantras to chant. We need spiritual food stuff. कभी आप किसी भंडारा में, सवामणि में, किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में गए होंगे, दे विल प्रोवाइड यू वन पूड़ी, सब्जी एंड स्वीट. आप कितना रेलिश करते हैं उसको, राइट? व्हाई यू आर रेलिशिंग दैट? क्योंकि दिस फूड इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड. दिस इज बिग साइंस. एंड फूड इज स्पिरिचुअलाइज्ड. जैसा खाएं अन्न वैसा खाएं ओ मन. कभी एनी टाइम यू गेट, you please visit our place in Jagatpura near Gyan Vihar College. It's near to SKIT College as well. You will see so how these three aspects will definitely help us to come out of all depression, all anxiety, all repressions in our life. But problem is क्या है कि we are forgetting the self, and we are busy in taking selfies. आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी लगता है. सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी. अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दें, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी. Please understand, it's a very, very important aspect in our life. So I hope you have understood this analogy of chariot of the body. 5 senses, these ropes are like mind, and this chariot driver is intelligence. And the person who is sitting on this chariot is spirit soul. इस शरीर रूपी रथ पर जो व्यक्ति सवार है, soul. And Bhagavad Gita is saying, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधः. Means an intelligent person does not take part in the source of misery which are due to contact with the material senses. ऐसा कोई प्लेजर जो सेंसेस से मिल रहा है, बिगिनिंग में हैप्पीनेस लगेगा, लेकिन उससे बाद में हमें प्लेजर नहीं मिलेगा, हमें उससे दुख मिलेगा. लाइक आपने देखा होगा कैसे मछली को पकड़ा जाता है, एक हुक फेंक दिया जाता है और वो मछली सोचती है ये मेरा खाना है, एंड शी इज कॉट. सेम विद द मॉथ. वो सोचता है इस जो प्रकाश हो रहा है इसमें बहुत आनंद है, आई लाइक इट, एंड गॉन. दिस इज व्हाट. सो कृष्णा इज सेइंग, Krishna is saying, "O son of Kunti, such pleasures have beginning." Pleasure है, हम मना नहीं कर रहे हैं, but इसका end भी है. So wise man does not delight in them. लेकिन हमें कैसा pleasure चाहिए? हमें unending pleasure चाहिए, unlimited pleasure चाहिए. ये कोई utopian बातें नहीं है, हैरी पॉटर और चाचा चौधरी उसकी कहानियां नहीं, ये reality है. This is a reality. So ये जो प्लेजर है वो टेम्परेरी है, जो मटेरियल प्लेजर है. स्पिरिचुअल प्लेजर है वो परमानेंट है. एंड वन डे आवर बॉडी इटसेल्फ विल नॉट बी फिट इनफ फॉर अस टू सीक सच मटेरियल प्लेजर. बिग स्टार्स
young age, so nice, able to attract billions of people. But एक समय आता है कि every one of us have to become old, right? You can see here, great this Muhammad Ali, what he used to say, the greatest. But now you see, let's watch a small video. I am the greatest. I am the greatest. Who's the heavyweight champion of the world? But now he is suffering from some disease. He is not able to lift one cup of tea, you see. So let's be very humble, dependent on the Supreme Lord, and understand from Bhagavad Gita that how to lead a happy, satisfied, contented life. Because this Bhagavad Gita is the manual of life. जैसे आप एक नया मोबाइल या कुछ गैजेट लेके आते हैं घर में, उसको कैसे ऑपरेट करना है उसके साथ एक मैनुअल आती है, तब आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस शरीर को कैसे चलाना है, जीवन को कैसे चलाना है, जीवन को कैसे जीना है, और उस मैनुअल को कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो भगवत गीता में लिखा है यंत्र रूणानी माया, दिस बॉडी इज लाइक ए मशीन, ये मशीन की तरह, इसको कैसे चलाना है सारी बातें बताई गई हैं। क्रोध से कैसे निकलना है, स्ट्रेस से कैसे निकलना है, सब बातें भगवत गीता में बताई गई। कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, everything is mentioned so beautifully in Bhagavad Gita. So this Bhagavad Gita is the manual of life. So spiritual pleasure is real pleasure and is unending pleasure, and this is the same pleasure that we all are seeking for. And very beautifully our Hitopanishad says, आहार निद्रा भई मैथुनम च सामान्येतम पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। मीन्स आहार निद्रा भई मैथुनम च, हम भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, both activities are same. You see, nidra, we are also sleeping, animals are also sleeping. Bhai, we are also protecting ourselves. Maithunam cha, we are also producing kids and all. Ahar, nidra, eating, sleeping, mating and defending. 4 activities are same in animal and human being. It's a reality. सामान एतत् पशुभिर नराणाम, दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो। वी कैन आस्क सच क्वेश्चन टू अवरसेल्फ, हु एम आई? मान लीजिए 2 व्यक्ति ट्रेन में बैठे हैं, एक दूसरे से पूछता है, कह रहे भैया कहां से आए हो? वो बोलता है पता नहीं कहां से आया हूं। अच्छा ये बताओ कहां जा रहे हो? तो पता नहीं कहां जा रहा हूं। क्या बोलेंगे? ये पागल है, ट्रेन में बैठा है, इसको पता नहीं कहां से आया कहां जाएगा। सर मान लीजिए आपकी एज 40 है अभी, मैं आपसे पूछूं सर 45 साल पहले आप कहां थे? पता नहीं। 80 साल बाद कहां होंगे? पता नहीं। वी डोंट नो हु वी आर, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, इज देयर गॉड एग्जिस्ट, इफ गॉड एग्जिस्ट इज देयर एनी रिलेशनशिप विद मी, वेयर डज ही लिव? These are the fundamental queries of life. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, धर्मे नहीं नो पशु भी समाना, यदि ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी, ये इंक्वायरीज नहीं होगी, तो स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। देयर इज नो डिफरेंस, सॉरी टू से, इट्स अ रियलिटी, देयर इज नो डिफरेंस। आपने सबने सुनी होगी ये स्टोरी गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ एक बालक एक बड़े से महल में रहता था। एस्ट्रोलॉजर को जब उसका हाथ दिखाया गया तो बताया गया कि यदि ये कोई दुख देख लेगा तो ये संसार को छोड़ देगा। तो उसको महलों में रखा गया, उनका विवाह भी हो गया। एक दिन उनको मौका लगा
कि चलो थोड़ा भ्रमण करने चलते हैं। तो अपने सारथी को लेकर वो भ्रमण की ओर जाते हैं और कभी भी उन्होंने बॉडीली पेन्स विजरीज एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन वंस ही हैपन टू सी ए डिसीज्ड मैन। पूछते हैं उससे सारथी से, ये क्या, इसको क्या हो गया है, ये बीमार, वो बोलते हैं बीमार हो गया है। अच्छा बीमार हो गया है, बीमार भी हो जाते हैं क्या? हाँ बीमार हो जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, एक व्यक्ति ओल्ड है, अरे इसको क्या हो गया है, ये ऐसे कैसे चल रहा है, ये बूढ़ा हो गया है, ओल्ड है। अच्छा ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी होगा? तो बिल्कुल तुम्हारे साथ भी होगा। अच्छा फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चल के फिर एक व्यक्ति अपना जिसने शरीर छोड़ दिया, लोग बैठे हैं वहां पे रो रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों बैठे हैं, ये आदमी सो क्यों रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है? तो सारथी बोलता है ये तो गया। गया मीन्स ये तो मर गया। अच्छा मर गया तो हमें भी मरना पड़ेगा, हमें भी मरना पड़ेगा, ये तो सच्चाई है, रियलिटी। Then he took sannyas. You did not to take sannyas at your home with your profession. You can practice some few things. I will tell you in the end. If you practice those things, definitely, no doubt about it, you will see a tremendous positive transformation in your life. कोई डाउट ही नहीं इस बात में. So he immediately understood the temporary nature of the body and the pleasure derived thereof. So it's very, very important that we need real happiness. That's how Siddhartha became Buddha. Buddha means enlightened. So Bhagavad Gita 18th chapter, it says ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। देखो हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्यों रहती है, उसके पीछे दो रीजंस हैं, आप हमेशा चेक कर सकते हैं। एक तो सोचती, कि पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जो हम नहीं चाहते थे, और उसके बारे में सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है कांक्षति। वी हैंकर कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उस रिजल्ट के बारे में, उस एंजॉय के बारे में हम सोचते रहते हैं। सोचती, थिंकिंग अबाउट पास्ट, कांक्षति, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। So let's be in the present. आज let me be happy today. I have not seen tomorrow. आज सुबह आप जगे, pray to the Lord, Lord please make me happy today. Please make my day today successful. Then next plan for the next day. Likewise, you live your life, you will be really happy. So one who thus transcendently situated becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. This is what so beautifully our scriptures are referring to us. Yam labdva cha param labham mannate nadikam tata. Upon gaining this, he thinks there is no greater gain. यदि आप एक कुछ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में आ गए हैं, and this is not only possible for a person who has dedicated life for the spirituality, being at your position, being as a professor, being as a faculty, you can be happy, it's possible. Anandam buddhivardhanam pratipadam, at every step the joy will increase, stress will go away and joy will come in your life. So broadly speaking, let me try to summarize. Material pleasure is nectar in the beginning. है ना, बिगिनिंग में आपको मान लीजिए फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है और ये खा लो वो खा लो, फिर बाद में क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, राइट? नेक्टर इन द बिगिनिंग बट पॉइजन इन द एंड। मटेरियल प्लेजर के साथ ऐसा है, आप हमेशा देख सकते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्लेजर है, पॉइजन इन द बिगिनिंग, आपको मैं बोलूंगा कि आप ना थोड़ा सा मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, थोड़ी भगवत गीता पढ़िए, आपको पता भी है कि पढ़नी चाहिए, ये अच्छी चीजें हैं, ये सेशन में काफी कुछ हमने सीखा, लेकिन फिर मन बोलेगा यार छोड़ो, 2 दिन 3 दिन हो गए। वो दोहा है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भूरी करे वो कब, हम उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है कर लेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत डली है बरसों, हम उल्टा कर देते हैं। तो वी विल हैव टू बिकम हाईली डिटरमाइंड कि ये मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू विल सी a tremendous positive transformation in all aspects of your life.
So you may feel the spiritual pleasure poison in the beginning, but believe me, it's a fact. I have so many examples from all aspects of life. हर प्रकार के लोगों के से मेरे पास उदाहरण है. कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ फैकल्टीज भी हैं जो चैंटिंग कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज पा रहे हैं. नेक्टर इन द एंड. You may feel poison in the beginning, but actually these spiritual practices are nectar in the end. And that's what our scriptures are saying. Tamasi ma jyotirgama, don't remain in this darkness, come to the light. And how to experience the real happiness, as I have already told you. बस 3 चीजें हैं. मैं आपको ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, छोटी छोटी 3 चीजें. आप let's have some takeaways from this session. This Divya Gyan, transcendental knowledge. This Bhagavad Gita is so nice. Bhagavad Gita आपको नहीं समझ में आ रही है तो please contact us. We will provide you some other small books. IQ, EQ, SQ, The Science of Self Realization जो MIT में बहुत पॉपुलर हुई. छोटी छोटी स्टोरी बुक्स भी हैं. Very nice books are there. So please read these books. And if you belong to a different religion, please read those books. Please read those books. So nice to read such books. This knowledge. And second one is mantra meditation. मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं जो ऑकवर्ड है, रिलेवेंट नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, केवल प्रवचन सुनना था, हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, ऐसा नहीं है. मंत्रा, मन मीन्स माइंड, त्रा मीन्स जो माइंड को डिलीवर करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, दैट इज त्रा. मंत्रा, मंत्रा मेडिटेशन जो मन को कंट्रोल करता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल. और ये कोई पुरानी बात नहीं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, ये पुरानी बातें, अपना कल्चर है, अपना ये ट्रेडिशन है इन आवर, स्पेशली इन आवर इंडिया. सो वी रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस हरे कृष्णा मंत्रा मेडिटेशन, हरे कृष्णा मंत्र योगा मेडिटेशन. तो एक्चुअली ये बहुत साइंटिफिक है. फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई और ये एक रिसर्च इन्होंने भी की है, जेफरी डी थॉमसन. क्या बोलते हैं वो? इफ वन स्टडी सिंपल साउंड मेडिटेशन टेक्निक, ये जो हरे कृष्णा चैंटिंग है ये साउंड मेडिटेशन है, यूज फॉर 20 मिनट्स ए डे, कॉज प्रोफाउंड चेंज इन ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग. इसमें बहुत बड़ा चेंज पाएंगे, बहुत बड़ा चेंज पाएंगे. समथिंग इंडिया न्यू लॉन्ग एगो, ये हमारा कल्चर है, वी नीड टू रिवाइव इट. सो एक रिसर्च की गई फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में. एक छोटा सा वीडियो है, ये वीडियो हम लोग देखते हैं, देन वी विल डू सम प्रैक्टिकल. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. So this research was done in Florida State University, USA, on this chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमने बहुत थ्योरी कर ली है, हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. सच में आपको चेंज फील होता है इन 2-3 मिनट में? रियली? प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स. 2-3 मिनट हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको. सच में आपको लगता है कि हाँ अच्छा लगा है, स्ट्रेस से रिलीफ हुआ है, माइंड को पीस मिला है, तो डेफिनेटली आप बताइएगा. सो लेट्स डू इट. एक्चुअली इसको हम एक बीड पर करते हैं, ये चैंटिंग बीड होता है, माला होता है, इस पे करते हैं. बट आज हम पूरा नहीं करेंगे, 108 बार हम करते हैं तो अधिकतम 10 मिनट लगते हैं. हम इसको 2-3 मिनट कर लेते हैं, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू कि इज इट रियली हेल्पिंग यू और नॉट. सो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप एक मंत्र मेरे बाद दोहरान करें, फिर उसके बाद हम सभी हरे कृष्ण मंत्र को बोलेंगे और सुनेंगे। हरे कृष्ण मंत्र बहुत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स वेरी इजी और इट्स ऑप्शनल, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आप सबसे कि भाई आपको करना ही है मेरे साथ। आप करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप जस्ट सुनते रहिए, उसको सुनिए। और इट्स गुड इफ यू कैन chant with me. So please chant this one mantra after me. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Now together we will be chanting Hare Krishna mantra. So ये जो बीड है, माला है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये अंगुली स्पर्श नहीं करते, अंगूठे से और इस बीच वाली अंगुली से पकड़ते हैं। इसमें एक जो हेड बीड रहता है, मुख्य मोती, उस पर हम ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। उसके बाद हर एक मोती पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। होल्ड द बीट, chant the mantra and hear the vibration. Scientifically also it is proved, if we engage our three senses in doing one activity, our concentration will be very high. So let's give it a try. So please join me very, very attentively. Just you have to hear the sound. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So I hope कि आपको अच्छा लगा होगा. I will be very happy if you can write your experience after doing this sound meditation or mantra yoga with me. सर यदि ये चैट बॉक्स यदि ओपन है तो इसमें सभी लोग लिख सकते हैं. वेरी नाइस, इट्स रियली गुड. डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं, रविंद्र सर बोल रहे हैं, वेरी नाइस सर. वेरी नाइस, इट वाज वंडरफुल, फेल्ट पीसफुल. सोनिया बेहरा जी बोल रही हैं, वरुण मजूमदार सर बोल रहे हैं, वेरी नाइस सर. सो थैंक यू ऑल.
for your wonderful reply, wonderful experience. So, in case any one of you would like to connect with our organization, the things, our practices, so many activities we are doing. So there is a opportunity. I'm writing one WhatsApp group link in the chat box, so you can join this group. After that, I will be taking your questions. तो ये मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो यदि आप इस पे अभी क्लिक करेंगे तो यू विल रीच टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड देयर आई कैन शेयर विद यू द मोर लेक्चर्स, मोर वंडरफुल एवरीडे वेरी वेरी इंस्पायरिंग कोट्स ऑन भगवत गीता जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, कुछ वीडियोस, और इनफैक्ट एक और बहुत अच्छी जानकारी है आप सभी के लिए कि कल से ही हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन। वी आर कंडक्टिंग वन ऑनलाइन क्रैश कोर्स ऑन भगवत गीता। इट्स ए 10-day वर्कशॉप एवरी डे इवनिंग 8 PM to 9 PM, 8 बजे से 9 बजे तक ये वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सेशंस में हम समझेंगे दैट हु एम आई एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, व्हाई बैड थिंग्स, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, इन करंट सिचुएशंस में कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड कर सकते हैं, लॉज ऑफ कर्मा क्या है, योग शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन सा योग प्रैक्टिस करें कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ऐसे बहुत सारे, इतने सारे धर्म क्यों होते हैं, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको डेफिनेटली इन वर्कशॉप्स में मिलेंगे। तो कल से ये वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। यदि इनकेस आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इसका भी, इस ग्रुप को यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी मैं डिटेल्स डाल दूंगा, और आप इस ग्रुप को कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है। और इसका जो वर्कशॉप है इसका लिंक भी मैं चैट बॉक्स में एक बार डाल देता हूं, तो इन केस आप में से कोई भी यदि इंटरेस्टेड हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक है bit.ly BG कोर्स 108, तो ये भी मैंने इसमें पोस्ट कर दिया है। और यदि आप में से कोई भी चाहते हैं कि आई वांट टू हैव दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस बीड टू प्रैक्टिस दिस मंत्रा मेडिटेशन, and I want to read Bhagavad Gita and other books on Vedic wisdom, then also you can order all these things. We will send you from our place. तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं इस ग्रुप पे ही डाल दूंगा, क्योंकि इतने सारे मैं लिंक्स लिखूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो दीज आर द सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड। मुझे आशा है कि आपको आपके लाइफ में इस डिस्कशन से कुछ पॉजिटिव चेंज आप फील करेंगे। यदि आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, और if possible you can unmute yourself and you can ask that way also. नमस्कार स्वामी जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सर, धीरज सर। सर बहुत बढ़िया सेशन रहा, बिल्कुल मेस्मराइजिंग रहा अभी 1 घंटा पिछला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स हैव आल्सो गॉट ए फ्रूटफुल टेक अवे फ्रॉम योर सेशन। नाउ एज ए सेशन moderator sir, I want to highlight some questions that I already I'm seeing in the chat box. Miss Sonia Behra want to ask sir, can you suggest small books for 6-year-old? 6-year-old kids, हाँ। yeah. यदि आप हमारे
हाँ हाँ, स्मॉल बुक्स हैं, ऐसी स्केचिंग बुक्स हैं जो उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज चीजों में उनको हेल्प करेंगी। तो ऐसी बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, जैसे हम लोग बच्चे जनरली कार्टन्स और ये सब देखते हैं, कार्टून्स एंड ऑल, तो ऐसी बुक्स तो हमारे आप टेम्पल में वो आपके सर अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी शायद आप उनको ये इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकेंगे। I हाँ can हाँ give you, हाँ। I can give you, I can give you the information. So हाँ सर। यदि फर्दर कम्युनिकेशन किसी को भी करना है उस ग्रुप पे, I will be बिल्कुल। there. My number is also there. You can see my photo. यस So यस वैसे सर। भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सर एक फ्यूचर एक और में क्वेरी है, श्री विनय सिंह मारवाल जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू चांट दीज मंत्रास? इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम वेयर अ पर्सन शुड चांट द मंत्रास? सर आप कभी भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन डू, और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ सही नहीं है, हमने स्नान नहीं किया है, कई बार सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि वी हैव नॉट टेकन बाथ, दैट टाइम आल्सो यू कैन चैंट दिस मंत्र। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में आप स्नान करके इस मंत्र को चैंट करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो आप ज्यादा फील कर पाएंगे। बाकी ऐसे कोई नियम नहीं है कि नहीं रात को नहीं करना है, दोपहर को नहीं करना है, एनी टाइम यू कैन डू, इवन वाइल वॉकिंग, टॉकिंग। टॉकिंग के समय तो नहीं हो पाएगा किसी भी समय पे आप इसको चैंट कर सकते हैं। Sir, there is one more fundamental question that we have been struggling. Prabhuji, how to come out from depression? This is one question that a participant has posted just now. How to come out from depression? पूरे सेशन में वैसे हमें इसी पे चर्चा की है, स्ट्रेस से कैसे बाहर आना, डिप्रेशन पे। फिर भी मैं आपको वन पिन पॉइंट सॉल्यूशन देता हूं, और ये फैक्ट है। हमारा जो माइंड है ना, कुछ कुछ बोलता रहता है और हम उसकी सुनते हैं। माइंड में जो थॉट्स हैं, दे आर लाइक सटल साउंड। एवरी डे अराउंड 60,000 थॉट्स ब्रीज थ्रू अवर माइंड। आउट ऑफ दीज 60,000 थॉट्स, 75% thoughts are random and unnecessary, and 75% illness is induced by our own mind. आप सोच लो मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, एक्चुअल में आप बीमार हो जाएंगे। सो माइंड का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में। नाउ माइंड कुछ कुछ बोलता रहेगा, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, एंगर, डिप्रेशन, ये सब चलता रहेगा। माइंड जो हमारा, उसका नेचर समझिए आप। जो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का जो मेन रीजन है वो हमारा माइंड है, और माइंड को हमें थोड़ा समझना है। माइंड एक सटल मशीन है, जैसे मैकेनिकल में लेथ मशीन होती है, ये सब मशीन होती है, ऐसे माइंड एक सटल मशीन है जो हमें दिखती नहीं, लेकिन ये है, इट्स वर्किंग लाइक ए मशीन। तो इस सटल मशीन को, माइंड को, हमें एक ऐसा फूड देना है कि जिससे ये फालतू की बातें नहीं करे, इधर उधर की अनर्गल, इसको प्यूरिफाई करना है हमारे थॉट्स को। यदि मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाऊं, watch your thoughts becomes words, watch your words becomes actions, watch your actions become habits, watch your habits become your character, watch your character decides the destiny of your life। आपके मन के विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके एक्शंस बनते हैं, आपके कार्य बन जाते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा आप करते रहते हैं, आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके जीवन का चरित्र निर्धारित करती हैं, आपका चरित्र आपके जीवन के गंतव्य को निर्धारित करता है। कहानी कहां से शुरू हुई है? A equal to B, B equal to C, C equal to D, D equal to E। Can we say A equal to E? तो हम कह सकते हैं हमारे मन के विचार हमारे जीवन की डेस्टिनी को निर्धारित करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि हमारे मन के विचार कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होते हैं? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग अवर थॉट प्रोसेस? सो एक्चुअली द काइंड ऑफ पीपल वी एसोसिएट एंड काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसी किताबें हम पढ़ते हैं। आप जाइए लाइब्रेरी में, चंपक, नन्हे सम्राट और जाने क्या क्या अटरम सटरम, इतना सारा लिटरेचर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड what is the literature which will help us to help us to become happy and satisfied? This literature, वो उसमें आता ना व्हाट्सएप पे, लास्ट सीन 20 minutes before, इसके भगवत गीता के लिए लास्ट सीन years before or never seen till now। This is the situation. So I request you humbly, please read this literature,
एंड ये जो मंत्र मैंने बताया, प्लीज आप सभी लोग ऐसे मत सोचिएगा कि ये प्रभु जी अपनी चीज का प्रचार कर रहे हैं और दोस थिंग्स आपके मन में आ सकती हैं। तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को अभ्यास करके देखिए, प्लीज गिव इट ए ट्राई। मेरे कहने पर आप 7 दिन 20 मिनट्स मॉर्निंग में लाउडली चैंट करके सुन के इस मंत्र को आप घड़ी लगा के, आपके पास बीड भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 7 मिनट इसको, सॉरी 7 दिन तक 10 मिनट 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, 20 मिनट नहीं हो तो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, इसका आप इस मंत्र योग को, मंत्र मेडिटेशन को करके देखिए। आई कैन गारंटी यू, आई कैन राइट इट ऑन पेपर। मैं क्यों बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि आई हैव सीन इट। आप बोलेंगे कि आपने तो आपकी लाइफ में देखा है, आप तो डेडिकेटेड है, आपका तो काम ही यही है। नहीं सर, ऐसे आप जैसे बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं, ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इसका अभ्यास कर रहे हैं और उनके जीवन में चेंज आ रहा है। आपके हर, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू विल सी ए ट्रेमेंडस चेंज। इट्स ए फैक्ट। पूरा डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा if you are able to chant and hear this हरे कृष्ण मंत्र, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। इनफैक्ट यदि आप स्क्रिप्चर्स में फेथ रखते हैं तो एक श्लोक है कली संतरण उपनिषद में, उसमें बोला गया है, आवर स्क्रिप्चर्स आर वेरी साइंटिफिक, उसमें बोला गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नात परतोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, कली कलमस नाशनम, ये जो कली शब्द है ना, ये बहुत साइंटिफिक है। कली शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो मशीन, तो हम देख रहे हैं कि मशीन के माध्यम से हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हम सबके पॉकेट में हमेशा एक मशीन रहती है। तो ये जो कली शब्द है, इसके 2 अर्थ है, एक तो मशीन, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद। पति पत्नी में मतभेद है, भाई बहन में मतभेद है, फ्रेंड्स में मतभेद है, कितना मतभेद है सोसाइटी में। तो कली कलमस नाशनम, इस कलयुग में जितने भी प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, उनका नाश कर देता है। नात परत उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गिव इट ए ट्राई, एंड इफ यू आर देयर इन द ग्रुप, always there is an opportunity for you to interact with me. If you are not getting the desired result, पूरा डिप्रेशन आपका चला जाएगा if you are able to do this. Sir, one participant also wants to ask any good book for kids. I mean, that can be understandable by kids regarding Bhagavad Gita. I mean, it is typical. किड्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा स्टोरीज बुक है, स्टोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज, स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज, और कृष्णा के बहुत अच्छे पास टाइम्स की, जो है ना, बचपन के जो पास टाइम्स है उसकी स्टोरी बुक्स हैं। यदुनंदन कृष्णा, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, यशोदानंदन कृष्णा, ऐसी कुछ बुक्स हैं, हमारे टेम्पल में है। टेम्पल आपको पता ही होगा, यदि आप जयपुर में हैं तो इट्स नियर टू SKIT ज्ञान विहार, है ना, जगत। Sir, sorry to interrupt. Most of the participants are outside Rajasthan, from different parts of the country. Yeah, we have around 110 participants from different parts of the country, mostly from the South India. And sir, yeah. Sir, there is one more question from Mr. Nilesh Chaudhary. He wants to ask how to reduce the fear of anything. अब हमें डर लगा रहता है हर चीज का कि ऐसा ना हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट few weeks back I took one session on fear, how to overcome fear. तो fear को थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। fear, FEAR, false experience, F, false E, experience A, appears real. जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी, मतलब फियर किसका करते हैं? अरे यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। अरे हुआ तो नहीं है ना अभी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फियर बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी डोंट डिजायर टू हैपन इन द फ्यूचर, एंड एट टाइम्स वी आल्सो सी दैट अरे यार हम तो सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिना बात के, विदाउट एनीथिंग, यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। बी इन प्रेजेंट, focus on now and here, what I have to do, then fear will not come in your life. There are so many things I can speak for again another half an hour on fear itself. So, but please understand,
बी इन प्रेजेंट, एंड डेफिनेटली जो मैंने आज चीजें आपको बताई हैं, वॉट एवर स्मॉल प्रैक्टिसेस आई हैव रिक्वेस्टेड यू, दीज प्रैक्टिसेस आर very very relevant and very very powerful. You just give it a try. If you face any difficulty, we are there available for you free of cost to help you out if you need us. Sir, one last question I think we can take from Ms. Sonia Behra. She wants to Yeah. ask that we say materialistic things don't give happiness, but to survive in this world, it is very imperative that materialistic things are too important. So how to balance between these two? I mean, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, how बहुत much अच्छा materialistic things we should adopt in our life? I think मेटेरियलिस्टिक चीजें जस्ट टू लिव अवर लाइफ, वी नीड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन क्या है हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे कि ये जो मोबाइल है ये जरूरी है हम सबके लिए, लेकिन होता क्या है, एक रिसर्च में बताया गया है कि एवरी डे 2117 times a person swipe his mobile screen. तो ये मोबाइल सबको जरूरत है ना, अभी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें ओवर पावर कर लेता है, मटेरियलिस्टिक चीजें हमें ओवर पावर कर लेती हैं, हम उनसे इतना अटैच्ड हो जाते हैं, वो सही नहीं है। सो वी हैव टू हैव ऑल दीज थिंग्स, बिल्कुल चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें चाहिए। एक तो हमारी नीड होती है, एक हमारी ग्रीड होती है। जब ग्रीड आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। नीड के लिए तो सबको चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं यदि समराइज करूं तो वी हैव टू बैलेंस योर गुड हेल्थ, यू हैव टू गिव टाइम फॉर योर हेल्थ एवरी डे, योर फिजिकल हेल्थ, यू हैव टू गिव टाइम फॉर योर ड्यूटीज। इसलिए बोलते हैं ड्यूटी पे जा रहे हैं हम, ड्यूटी बजा के आ गए। ऐसा नहीं कि आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज से लौटने के बाद हमेशा कॉलेज के बारे में सोच, आप एक्चुअली नहीं सोचना था कॉलेज का हो गया, अभी घर का देखना है। और कॉलेज जाने के बाद आप घर के बारे में सोच रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो ये सब हमें थोड़ा सा बैलेंस करना आना चाहिए कि सही समय पे किस समय पे हमें क्या करना है। तो तीन चीजें हैं, एक तो आपकी हेल्थ, दूसरा आपकी ड्यूटी। अब ड्यूटीज आपकी, एक तो एक प्रोफेशन है, यू आर ए टीचर और यू आर ए फैकल्टी, वो ड्यूटी है आपकी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ड्यूटी उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फिर कोई बोले, इफ somebody says okay these two things are sufficient, I am doing my duty, I am taking care of my health, why I need all this spirituality, this Bhagavad Gita, this chanting, so many things you are telling, okay, आप इन दो चीजों को करिए, then you see your life, sir, you are not completely happy and satisfied, and at times you are not able to manage your duty and health. You need strong determination. From where that determination will come about? That determination will come from the spiritual practices. ये फैक्ट है, आप करके देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। very right, sir. Yes, sir, very right. Sir, we have one more interesting question, Yes, that please. are there ghosts or it's a thinking only? Are there ghosts? Yeah, very interesting question from Actually, Mr. Nilesh Chaudhary. yes, very nice question. In Bhagavad Gita 7th chapter 4th verse, it says, भूमिर अपानलो वायु खम मन बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। एक्चुअली हम जो आत्मा है, वी आर स्पिरिट सोल, उसके ऊपर दो तरह की कवरिंग होती है। एक कवरिंग होती है सटल कवरिंग, एक होती है ग्रॉस कवरिंग, की जो बॉडी हम देख रहे हैं, जो कि अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड ईथर से मिली है। पंच तत्व आपने सुना होगा। दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, आवर बॉडी। एंड हमारा जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो होती है सटल कवरिंग, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं। हम सबको पता है हमारा मन है, अरे अभी क्लास में बैठे हैं, मन उधर चला गया, अरे ये क्लास कब खत्म होगी, मन बोल रहा है। तो ऑल दोस थिंग्स कम्स इन द माइंड दैट वी कांट सी, बट इट माइंड इज देयर। तो जब कोई व्यक्ति समय से पहले वॉलेंटरली अपनी इस ग्रॉस बॉडी को दे देता है, या सुसाइड कर लेता है, या कुछ कर लेता है, उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी आत्मा के ऊपर सटल बॉडी रहती है, उसका मन रहता है, इंटेलिजेंस रहता है, ईगो रहता है, और उस
और उसको नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी मिली नहीं है, क्योंकि ये बॉडी जितने समय तक उसको जीना था इस शरीर में, उससे पहले ही उसने खुद से ही अपने शरीर को छोड़ दिया, तो उस समय तक उसको गोस्ट की बॉडी मिलती है. सो गोस्ट आर रियलिटी. बहुत ज्यादा Okay, sir. डिटेल में नहीं Yeah, जाएंगे. no, sir, it's good that you have, in a very precise manner, you have elaborated the fact. And I think there are some questions that we can have on the WhatsApp group, like how do we get this mala that you have demonstrated? You have already said that Yes, you can. I Can will- we have yes, I will recorded say. mantra? Can we have recorded mantra? I will think yeah. I will share on the WhatsApp group. People from Definitely. Delhi want to ask where to approach. I think if they are from Delhi or from any other part of the country, they will definitely be I given will some link. connect you. I will connect you for various places across the country. I will connect you. In case you are in Bangalore, you are in Delhi, you are in some part of the country, or if you are out of the country, also I will try to connect you, our devotees like me, at that उस place पे आपको easy रहेगा. Thank you, Krishna Baji, for this very wonderful, nice session. And we are organizers, and as SKIT family, wish that we will be definitely taking your services, your spiritual learning in person to person whenever the things are in tune with the COVID pandemic. And as far as organizers are concerned, for all fraternity, we are extremely thankful for accepting our invitation and be a part of this wonderful afternoon. We have been, our energies have been renewed and interest keener than ever in the spirituality. Thank you for being here. Dhanyavad, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We will meet you, sir. Our person will meet you at the ISKCON for other formality. Dhanyavad. Thank you. Thank you.